Progress. Hello everyone, welcome to another class, and it is a very important class from the perspective of examination. And in today's class, we are going to take up a topic, and the topic is competencies of an entrepreneur. This is from Unit 2, an entrepreneur, and I believe this is amongst the most important, of the topics that you people have to pay attention to. So in today's class, we are going to take up 13 important competencies of an entrepreneur, which are very important in order to progress in your field. So let's take up today's class. Unit 2, an entrepreneur. Class 3, competencies of an entrepreneur. And today we are going to discuss these 13 competencies. The first one is, or these are the points under discussion: entrepreneurial competencies, initiative, creativity and innovation, risk taking and risk management, problem solving, leadership, persistence, quality performance, information seeking, systematic planning, persuasion and influencing others, enterprise launching competencies, and enterprise management competencies. So let's take up the first point: competencies of an entrepreneur. And believe me on this, this is something very, very important that I'm taking with you today. Let's take up the first point. So the first point is the entrepreneurial values and attitudes provide the necessary backdrop for acquiring the sense of enterprise. So, Bacho, in order to become a valuable person, valuable entrepreneur, it is very necessary to understand yourself, your background, and the values or the learnings that you earn from that background. When you learn these type of values for yourself, you apply these values in your daily life, and it will help you to develop your organization, in a great way. So the entrepreneurial values and attitude provides the necessary backdrop or the background for acquiring the sense of an enterprise. If you do not have any exposure to business, or how to run a venture, or certain values to not to give up and continue working, if these values aren't there, you cannot run your organization well. So these values are very important, and they act as a background for you to work properly, to run your venture or a business. Next point, it is, however, necessary that a budding entrepreneur should have a necessary competencies so that he or she can venture into an enterprise. So, but in order to become a good or a strong entrepreneur, you need to, have certain competencies, necessary competencies, which are really needed for you in order to run an enterprise. Means, I always say that it is not easy to do a job, neither it is easy to do a business. So if you want to do business, you require, necessary competencies. Some skills are needed not to, run an organization. Next point, competency is a set of defined behavior that provide a structured guide enabling the identification, evaluation, and development of the behaviors in an individual. So much of certain abilities are needed, that provides you a structured direction, a structured guide, which enables you to identify, evaluate, and develop the behaviors which are needed to, work as an entrepreneur. Means to say, there are certain special skills, special abilities needed in order to, put yourself into this venture, that is, your own business or, entrepreneurship. Fourth point, the entrepreneurial competencies can be classified under the following categories. They are 13 in number and listed on the next slide. So, I'm going to talk about competencies, the skills हैं, abilities हैं, जो एक व्यक्ति में होनी ही चाहिए
अगर उन्हें अपना वेंचर स्टार्ट करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, और सिर्फ इसीलिए एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाना है कि दे डू नॉट हैव एनी अदर थिंग टू डू. Are you getting it? So certain skills are, needed and required. So let's take up these uh, uh, skills one by one. So we will talk about entrepreneurial competencies: initiative, creativity and innovation, risk taking and risk management, problem solving, leadership, persistence, quality performance, information seeking, systematic planning, persuasion and influencing others, enterprise launching competencies, and the last one, enterprise management competencies. So we want to take up all these, competencies of an entrepreneur, step by step and one by one. Let's take up entrepreneurial competencies. Okay. These are the certain basic competencies to be acquired by an entrepreneur. They relate to the type of behavior exhibited in performing of various tasks. Some of these competencies are latent in an entrepreneur, which needed to be identified, nursed, and nurtured. Others are acquired through training and practice. So बच्चों, एक entrepreneur बनने के लिए आपको कुछ specific skills, specific abilities चाहिए. और अगर ये आपके अंदर skills, abilities हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आप उन्हें पहचान पा रहे हो या वो बाहर आ चुकी हो. तो अगर नहीं है, अगर देखिए वो कहते हैं थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं सम ऑफ दीज कॉम्पिटेंसीज आर लेटेड, मींस डोरमेंट और हिडन इन एन एंटरप्रेन्योर, व्हिच नीड टू बी आइडेंटिफाइड. उसे पहचानना पड़ता है, व्हिच नीड टू बी नर्स्ड. उसे फिर नर्स करना पड़ता है और नर्चर करना पड़ता है. उसे यू नो सपोर्ट करना पड़ता है उस स्पेसिफिक स्किल को, ताकि उस स्किल को आप पॉलिश कर सके, वो डोमिनेट ना रह सके, और व्यक्ति उस स्किल को अंडरस्टैंड करके अपनी कॉम्पिटेंसी समझ के अपने वेंचर की क्रिएशन में लगा सके. अदर्स आर एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस. और अदर स्किल्स जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों में देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग और प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों के अंदर बिजनेस समझने की बहुत कैपेबिलिटी होती है, पर जब भी उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है टू स्पीक अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर बिजनेस, दे फेल टू डू दैट. सो ये चीजें हैं, इसे पॉलिश किया जा सकता है विद ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस. And believe me on this, that everyone is having one or two or three capabilities, but sometimes these capabilities are so dormant that person is unable to realize those abilities and competencies. तो उन्हें फिर नर्चर किया जाता है, नर्स किया जाता है, और जो आप रोजमर्रा के जीवन में लोगों में देखते हैं उसको आप ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से सीख सकते हैं. तो कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ सोच कर या गट फीलिंग से बिजनेस नहीं चला सकते. इसके लिए बहुत सारी स्किल्स और क्वालिटीज नीडेड है. उसमें सबसे पहले इनिशिएटिव. वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज द एबिलिटी टू टेक इनिशिएट. एक्शन लेने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए. इट इज रादर द फर्स्ट स्टेप इन द एंटरप्राइज. एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी keen observer of the society, the commercial trends, the product types, the change dynamics, and the consumer trends. Once he or she decides to take the initiative, what matter is the speed with which he or she is going to function or take an action. पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन एबिलिटी होनी चाहिए. आपको देखिए, ये देखिए, यहां से इस पॉइंट को अंडरलाइन करते हैं, कीन ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वर ऑफ द सोसाइटी. आपको कमर्शियल ट्रेंड्स देखने चाहिए कि इस समय क्या दौर चल रहा है, क्या चीज बिक सकती है, क्या चीज नहीं बिक सकती. तो आपने उन चीजों में ज्यादा कोशिश नहीं करनी है जो चीजें कम बिक पा रही हैं. आपने उन्हीं चीजों में यू हैव टू इनपुट योर एफर्ट्स एंड लेबर, जहां पे आपको लगता है यू कैन सेल द प्रोडक्ट्स एट अ गुड पेस. द प्रोडक्ट टाइप्स, किस टाइप का प्रोडक्ट बिक रहा है. द चेंज डायनेमिक्स, कितनी जल्दी उस प्रोडक्ट के अंदर चेंज लाने की जरूरत है या रिक्वायरमेंट है. और कंज्यूमर आजकल क्या डिमांड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ विल टॉक अबाउट a trend of using mobile phones or gadgets nowadays, it's in great demand. आजकल तो बहुत सारे ट्रेंड्स गैजेट्स ऐसे आते जा रहे हैं जो मैंने पहले कभी सुने ही नहीं थे, बट स्टिल पीपल आर मेकिंग इट एंड दे आर सेलिंग इट एज.
अब देखिए ये चीजें ना ऑब्जर्व करना भी आसान है, आप इन्हें ऑब्जर्व भी कर लोगे, पर मुश्किल बात क्या है कि जब आप इन्हें ऑब्जर्व करने के बाद एक्शन में नहीं ला पाते, बात को मटेरियलाइज नहीं कर पाते, तो ये बहुत जबरदस्त एक आइडिया एक फेलियर के तौर पे, एक फियास्को के तौर पे आपके सामने आ जाता है। फिर आप जब उस पर एक्शन नहीं ले पाते तो ऐसा लगता है यू आर नॉट केपेबल, या आपके अंदर इनिशिएटिव टेकिंग जो कॉम्पिटेंसीज है वो नर्चर्ड नहीं है, और उनको नर्चर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज द टाइम विल गो अवे and you will remain wherever you are. So it is very important to take an initiative, but before that you should be a keen observer of the society, commercial trends, product types and change dynamics and the consumer trends. Very very important. पहला point हो गया initiate. Next point is creativity and innovation. कुछ नया कर. Competency in creativity and innovation are sometimes basic traits of certain individuals. He or she might not have any new ideas. He or she may use the creative ideas and innovative products and services to meet the challenges of a situation. Take advantage of the utility of an idea or product to create wealth. अब बच्चों creativity और innovation, they are not simple and they are not everybody's cup of tea. हर कोई creative नहीं हो सकता, हर कोई इनोवेटिव नहीं हो सकता। ये कई बार किसी व्यक्ति में बहुत कॉमन ट्रेट्स होते हैं, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, और कईयों के अंदर बहुत फार फेच ट्रेट्स होते हैं कि कभी भी वो क्रिएटिव नहीं होते। बट अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है नए आइडियाज को जनरेट करने की, तो आप उन जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट में सबमिट कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द यूटिलिटी ऑफ एन आइडिया और प्रोडक्ट टू क्रिएट वेल्थ, और आप उन प्रोडक्ट्स के बेसिस पर आप लोगों को बता सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट, एंड शेयरिंग लेस ऑफ द डिसएडवांटेजेस, मोर एडवांटेजेस ऑफ इट। आप एटलीस्ट एक प्रोडक्ट को नए तरीके से एक पब्लिक के लिए लॉन्च कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्या दिया है, चेंजेस इन द पैकेजिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। देखिए आप वेफर्स खाते हैं, वेफर्स पहले एक मतलब मुझे अभी तक याद है जब मैं छोटा होता था, माय फादर यूज्ड टू टेक मी टू द मार्केट, पहले सिर्फ एक कलरलेस प्लास्टिक पेपर के अंदर ये स्टेपल्ड होकर वेफर्स मिला करते थे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एज पर द डिमांड्स ऑफ द पीपल, सारी कंपनीज इन्हें एयर टाइट पैकेजिंग में रखती है, सो दैट इट कैन रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही और शी माइट नॉट हैव न्यू आइडियाज। अगर आपके पास नए आइडियाज नहीं है तब भी he or she may use the creative ideas and innovative products and services to meet the challenges of a situation. तो जो भी प्रोडक्ट्स है सर्विसेज हैं उनकी क्रिएटिविटी को आप यूज कर सकते हैं in order to meet the upcoming demands of the customers. Take advantage of the utility of an idea or a product to create wealth. और अगर आप देखिए पोटैटो वेफर्स भी है, आप हाई क्वालिटी पोटैटो वेफर्स बनाते हैं, उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी रखते हैं, एंड पैकेजिंग इज सच कि आप इजीली उसे टीयर नहीं कर पाते हैं, and your product generally remains fresh. So in that case you are adding value into the life of the customers, those who are purchasing your products, and I believe it is going to be a value addition in their life and your life. So creativity and innovation is needed, but even if you do not have it, you can use the qualities and the advantages of the product in order to generate it for the customers. So let's take up the fourth point, रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए बच्चों एंटरप्रेन्योर्स कौन है, दोज हु अंडरस्टैंड रिस्क एंड जनरली दे आर एडवाइज्ड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स, बट इफ दे आर नॉट टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, इट डजंट मीन दैट दे शुड नॉट बी टेकिंग रिस्क। अगर वो रिस्क कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं और वो रिस्क नहीं ले रहे हैं तो that's a bad thing. So let's take up these 4 points. An entrepreneur ventures into new ideas and new service. He or she treads into areas of uncertainty. जब आप नया प्रोडक्ट नई सर्विस बनाते हैं तो आप बहुत लीस्ट होपफुल होते हैं कि भैया ये बहुत बड़ी सक्सेस बन जाएगा। अब अगर नहीं बनेगा तो क्या आप उसे लॉन्च नहीं करेंगे? नहीं, आपको लॉन्च करना पड़ेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, अगर वो बहुत बड़ी सक्सेस नहीं बन पाएगी तो क्या हम उसे लॉन्च नहीं करेंगे? नहीं, हम तब भी करेंगे। There are several elements such as demand, supply in the market, resources availability, acceptability of the product design and service which throw a potential challenge to the entrepreneur. तो
बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो प्रोडक्ट की के क्लिक होने के लिए जिम्मेदार है। देखिए ऐसा है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एकदम से उसकी डिमांड बढ़ गई, पर आपकी तरफ से सप्लाई इतनी नहीं है और आप उस प्रोडक्ट को इतना मार्केट में भेज ही नहीं पा रहे हैं, तो इट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाने से ही प्रोडक्ट चल जाए। मैं कई बार कहता हूँ कि इफ यू वांट टू सी द रियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ, देन गो एंड सी द लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, उसमें बहुत पैसा लगाया है, इनोवेशन लगाई है, यू हैव इन्वॉल्व सो मेनी पीपल इनटू मेकिंग अप दैट प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता है और लकीली इट गेट्स क्लिक, और क्लिक होने के बाद आपकी सप्लाई प्रॉपर नहीं है पर उसकी डिमांड बढ़ गई है, अगेन इट विल रिजल्ट इन अ फियास्को। टू attune means adjust oneself in the skill of risk taking and management. He should practice in several areas of entrepreneurial functions such as entering new markets. देखिए बच्चों, आपको ना आगे बढ़ने के लिए ना, रिस्क यहाँ पर क्या मतलब है, खतरा किस चीज का है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसकी आपको डिमांड का एहसास तो है, पर अब देखिए ना, आपने अपनी तरफ से उसको बना दिया, उसकी पैकेजिंग कर दी, उसकी मार्केटिंग कर दी, उसको कस्टमर तक पहुंचा दिया, अब वहां जाके वो प्रोडक्ट क्लिक नहीं होता है तो आपके लिए वो रिस्क है। पर क्योंकि वो प्रोडक्ट क्लिक नहीं होगा एंड यू आर नॉट गोइंग टू लॉन्च इट, दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर रिस्क, तो आपको लॉन्च करना पड़ेगा। आपको क्या पता आपका कौन सा प्रोडक्ट इज गोइंग टू बिकम अ कैश क्रॉप फॉर यू, कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन जाए। आज आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें जिनके कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, दोज हु आर सोल्ड ऑन कैश इन एवरी मार्केट। कई कंपनीज ऐसे उनका मिल्क ट्रक कैश के कैश बिक जाते हैं, बटर कैश का कैश बिक जाता है, चॉकलेट्स बिक जाती है, उनका चीज बिक जाता है। कैसे होता है? बिकॉज सम वे दे हैव इंट्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट एंड दे हैव मेड इट क्लिक। Fourth point. For example, when Dhirubhai Ambani faced cash crunch, he took the risk of issuing shares in 1977 to the public when not aware, they were not that aware about the share market. तो 1977 में जब धीरू भाई अंबानी को कैश क्रंच आया था, तो उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड किया था एंड आस्क्ड पीपल टू इन्वेस्ट इन हिज कंपनीज, और उस टाइम पर उन्हें शेयर मार्केट का कोई भी अंदाजा नहीं था। तो आज आप देख लीजिए रिलायंस ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है, द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, एंड द रीजन इज रिस्क लेना ही रिस्क मैनेजमेंट की तैयारी। आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। देखिए बच्चों, एक है थ्योरेटिकल नॉलेज जो आप बुक से लेते हैं, दैट्स ओके, दैट्स वेरी गुड, बट उस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली जब तक इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, यू नेवर गोइंग टू गेट द नॉलेज कि भाई प्रैक्टिकली चीजें कैसे इंप्लीमेंट होती। बहुत अच्छा है कि आपने बायोलॉजी की बुक्स में पढ़ लिया है कि व्हाट इज हार्ट, हाउ टू ऑपरेट हार्ट, बट टिल द टाइम यू आर नॉट सीइंग द ओपन हार्ट एंड ऑपरेटिंग इट, वो प्रैक्टिकलिटी जब तक नहीं आती, यू वोंट लर्न द थिंग्स। तो रिस्क टेकिंग इज इंपॉर्टेंट, बट रिस्क मैनेजमेंट तभी आएगा व्हेन यू आर केपेबल एनफ टू टेक द रिस्क। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना, लोगों से अपनी राय मिलाना और उसके बाद उसको सॉल्व। इतना दुनिया में कोई केपेबल नहीं है कि एक बार प्रॉब्लम को देखा और सॉल्व कर दे। यू नीड टू प्रोवाइड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिक्वायर सम रिस्पेक्ट। आपको एक बार प्रॉब्लम को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है कि भैया मैं तेरे को समझ लूं, यू आर सो बिग इन ऑर्डर टू सॉल्व यू। और अगर आप उसको भी लाइटली और haphazardly करेंगे तो even that problem can become a big problem. Are you getting it? So sometimes you have to respect the problem as well. भैया let me understand you. Are you getting it? Okay. First point यहाँ पर, once an entrepreneur is aware that he has ventured on a new area, नया एरिया पे अटेम्प्ट किया है, स्टार्ट किया है काम करना, has taken certain calculated risk, बहुत सारे calculated risk लिए हों, he or she should also be aware that many problems are bound to come in the path of progress. बच्चों, आप मेरी बात आप याद रखना, आप 10th में बड़े अच्छे मार्क्स ले लीजिए, 12th में ले लीजिए, ग्रेजुएशन में ले लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में ले लीजिए, फिर किसी अच्छी डिग्री या बड़े कोर्सेज में ले लीजिए। आप ये कहें कि इन सब के बाद यू वोंट बी गोइंग टू फाइंड चैलेंजेस ऑन द वे, दैट इज एक्सट्रीम इम्पॉसिबल।
वो तो आएंगी ही। तो जैसे ही एक एंटरप्रेन्योर अपना वेंचर स्टार्ट करता है और वो काम शुरू करता है, उसको इस बात से अनभिज्ञ, इस बात से आजाद नहीं रहना चाहिए कि भैया मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, दे आर बाउंड टू कम। जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बिजनेस इज वन स्टेप फेलियर एंड टू स्टेप्स इट इज, सॉरी, टू स्टेप्स फेलियर एंड वन स्टेप इट कैन बी सक्सेस। हो सकता है 2 स्टेप में आपका जो लॉस हुआ हो वो 10,000 का हुआ हो, और एक स्टेप में गेन आपका 1 लाख का हो जाए। तो इट इज लाइक दैट ओनली। सो he or she should also be aware that many problems are bound to come in the path of the progress. आप इसे रोक नहीं सकते किसी भी कीमत पे। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं to take precautionary actions, but you cannot stop it from coming. They are bound to come. He or she should understand that there is more than one way of solving problems. तो मेरी बात आप याद रखिएगा, ये मैं बहुत बार अपने लाइव लेक्चर्स में भी बताता हूं कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं होता है। देयर आर 5, 6, 10 डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और वो तब पॉसिबल है जब आपका सोर्स ऑफ लर्निंग इज बिग। आपका सोर्स क्या है? नॉलेज एक्यूमुलेशन। अगर आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, आप लिटरेट लोगों से बात करते हैं, आप आइडियाज को स्टडी करते हैं, आप you watch certain programs that will help you to innovate on certain things, तो आपके पास एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस मिल जाए। बट इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम क्लियरली, और आपका सोर्स ऑफ नॉलेज इज समथिंग different or easy है, तो sorry to say it won't come to you. Okay, he or she should understand that there is more than one way to solving a problem. Look for alternative strategies or resources that would help to solve the problems, generate new ideas, products, services, etc. प्रॉब्लम्स आएंगी और वो आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, आप उनकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, पर आप उनको रोक नहीं सकते हैं। तो आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4 से 5 अलग अलग ऑप्शंस हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन एंटरप्रेन्योर फेसेस कैश क्रंच, he should look for alternative sources for receiving funds. Ratan Tata shifted the manufacturing plant of nano cars from Singur to Sanand due to unforeseen complexities. So बच्चों, ये जो है ना challenges, ये सबको आते हैं, पर yes, you need to be prepared for that. Now I have taken example of Sir Ratan Tata. जब टाटा नैनो की प्रॉब्लम आई थी सिंगूर में, तो उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया सानड़ में, क्योंकि वो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस कई डेवलप हो जाते हैं। पर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, फ्रॉम स्टार्ट टू मिडल टिल द एंड आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मेजर जो प्रॉब्लम है, एक तो है क्रिएटिव आइडियाज की, दूसरी है ह्यूमन रिसोर्स की, और तीसरी है कैश अवेलेबिलिटी। तो आपको इसको फोकस करना। प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम, एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को मानता हूं बिकमिंग अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। भैया प्रॉब्लम्स आएंगी, आपने उसके अंदर से सोल्यूशन सर्च करना है। आर यू गेटिंग इट? ये बहुत बड़ी कला है, सोल्यूशन सर्चिंग। ये इतनी बड़ी काबिलियत है किसी व्यक्ति के अंदर कि भाई वो किसी के उसे प्रॉब्लम आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। अब अगर वो, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज फॉलन ऑन द रोड एंड मेट विद एन एक्सीडेंट, तो अब वो बंदा ये कहेगा कि भाई मुझे अब मैं क्या करूं, इफ समबडी इज गोइंग टू हेल्प मी तभी मैं हॉस्पिटल तक पहुंच पाऊंगा। बट वंस he'll ट्राई एंड डू इट हिमसेल्फ, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। आई वांट टू गिव एन एग्जांपल। It was in 2011 I met with an accident, a very heavy accident. I broke my, देखिए मेरी ये आर्म पे ना अभी भी ये निशान बना हुआ है, if you can see it clearly। ये देखिए, ये बहुत बड़ा निशान है। तो बोन मेरा टूट गया, मैं उस टाइम बाइक पे था, और घर से मैं 4 किलोमीटर दूर था। अब मेरे पास, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो 2-4 लोग आ गए। अब उन बेचारों के पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं था। उन्होंने मेरी बाइक को ले जाकर एक कॉर्नर पे खड़ा कर दिया। मेरा हाथ टूटा हुआ है ऐसे। मैं कहा यार मेरी बाइक स्टार्ट कर दो आप। वो बाइक स्टार्ट भी हो गई, लकड़ी टूट गई थी, बाइक बाइक स्टार्ट भी हो गई। और मेरे फेस पर भी बहुत यहाँ पे ना निशान पड़ गए थे टूट के। हेलमेट था जबकि मेरा पहना, पर इट वाज वेरी सीवियर फॉल। मैं
अभी मैं याद करता हूँ तो इट वाज डिफिकल्ट थिंग टू फॉरगेट। तो मैं घर पहुंचा और ऐसे हाथ से चलाता चलाता घर पहुंचा। माय पेरेंट्स वरन देयर एट होम। मैं उसके बाद मैंने बाइक खड़ी की, मैंने जहां तक मैं फर्स्ट एड कर सकता था किया। देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल माई सेल्फ एंड द पर्सन टोल्ड मी इट इज अ बोन ब्रेकेज। आप आधे घंटे में हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के हम प्लास्टर कर देंगे इसके ऊपर। एंड टिल इन द इवनिंग मैं ऐसे था कि एटलीस्ट आई कुड हैव मैनेज्ड माय सेल्फ। तो प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम, बट आपको उसमें से ना उस प्रॉब्लम के साथ बहना नहीं है। आपको इतना एफिशिएंट बनना है कि आप उसमें से सॉल्यूशंस को सर्च कर सकें। आर यू गेटिंग इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लीडरशिप स्किल्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर पिक्चर ही बहुत जबरदस्त ली, लीडरशिप स्किल्स। अब लीडरशिप आप इसमें देखिए बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, लीडरशिप स्किल्स। इसके अंदर बच्चों इसमें तीन शब्द है। देखिए पहला शब्द है लीड, दूसरा शब्द है लीडर, और तीसरा शब्द है शिप। लीड, लीडर एंड शिप। तो लीडरशिप का मतलब क्या है कि आपको पहले तो लीड करना है, आगे आगे चलना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको टीम को कहां लेके जाना है, कब आगे बढ़ने को कहना है, कब रुकने को कहना है, और कब पीछे आने को कहना है। और शिप जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, शिप की क्या कैपेबिलिटी होती है कि एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह रखता है। तो आपने एक व्यक्ति को, उसके करियर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक पहुंचाना है। दैट इज व्हाट लीडरशिप। लीड, become a leader, and do all the possibilities a ship is able to do। तो सारे फंक्शन आपको शिप के करने। अच्छा, an entrepreneur should also be an effective leader who should be able to guide and encourage his or her team। अब भाई गाइड तो आप तभी करोगे जब आपको खुद कुछ पता होगा। अगर आप अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे तो आपको ये पता है कि भैया अगर ये व्यक्ति ये काम करता है तो ये रिजल्ट्स होंगे, और ये काम नहीं करता तो रिजल्ट्स नहीं होंगे। एंड मोटिवेट, और लोगों को ये बताओ कि भैया कंपनी में काम करने का मोटिव क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। और जब लोगों को अपना गोल पता होगा ना कंपनी में काम करने को, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, वेन एवर अ कंपनी फेसेस अ प्रॉब्लम, it is the willpower and effective business acumen and communication skills which oversees the success of the corporation। और जब भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस दौरान एक लीडर की, एक ओनर की, एक फाउंडर की, एक एमडी की इफेक्टिव बिजनेस एक्यूमेंट, उनकी बिजनेस कॉम्पिटेंसीज, इफेक्टिव बिजनेस एक्यूमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसका बच्चों मतलब है बात सुनना और सुनाना। सिर्फ सुनाना ही नहीं या सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनना और सुनाना दोनों। विच ओवरसीज द सक्सेस ऑफ द कॉर्पोरेशन, और इसके बेसिस पर कॉर्पोरेशन की सक्सेस को प्रिडिक्ट किया जा सकता। लीडर में लीडरशिप में तीन वर्ड्स है। पहला है लीड, आपको टीम के आगे आगे चलना है एज अ लीडर, और आपको भूमिका निभानी है एक शिप की। एक जगह से सामान को उठाना है, पूरी जर्नी तय करनी है, और दूसरी जगह सुरक्षित उस सामान को उतार देना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथी छाप की बात कर लेते हैं। परसिस्टेंस, in most cases the entrepreneurial pursuits are new and need very close attention। कोई भी entrepreneur बनता है, उनका काम क्या होता है, they develop new products, और उसको आप lightly नहीं ले सकते। you need to pay a close attention to what you are doing। growth, progress and success, growth, progress and success is always in detailing। बच्चों मेरी बात आप याद रखिएगा, जो व्यक्ति डिटेलिंग में नहीं जा सकता ना, वो हमेशा केयरलेस काम करता है। डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी गाड़ी सर्विस कराने जाए, आप उसे 10 क्वेश्चन पूछिए, भाई ये कर दिया, फिल्टर कर दिया, ऑयल फिल्टर कर दिया, ऑयल चेंज कर दिया, कौन सी क्वालिटी का ऑयल है,
कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना है, एयर प्रेशर, टायर प्रेशर चेक कर दिया है आपने, स्टीयरिंग ऑयल चेक कर दिया, 50 चीजें आप, क्योंकि आप डिटेलिंग में जा रहे हैं। और जब ऐसा व्यक्ति दोबारा उस सर्विस सेंटर पे जाता है ना, तो हमेशा दे आर फियरफुल ऑफ दैट पर्सन। डिटेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Creating a need in the market for the enterprise is one of the main requirements of the entrepreneur. आप इतनी वैल्यू कस्टमर को दे दें कि आपकी कुछ महीने की एब्सेंस इज गोइंग टू हर्ट द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर। अरे वो कंपनी गई कहाँ यार, कंपनी आई थी जिसने प्रोडक्ट लॉन्च किया। आपकी इतनी प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट की डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए प्रोडक्ट की। आप दिस कॉल्स फॉर इंटेंस perseverance on the part of the entrepreneur. Perseverance is something you're not supposed to give up till the time success is not, achieved. It is not over until I win. It's a beautiful book by, Les Brown. बहुत अच्छी किताब है। तो ये है, it is not over until I win. तो ये होगा persistence. गिव अप करने की ऑप्शन नहीं मेरे पास। क्या करूंगा, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, अब जॉब पे मैं वापस नहीं जा सकता। फिर तो मैं ये हो गया, बिजनेस भी कर लिया, जॉब भी कर ली, तो आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल। आई हैव टू बी परसिस्टेंस की आई एम नॉट सपोज टू गिव अप। दिस कॉल्स फॉर इंटेंस परसिवरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। रोड ब्लॉक्स टू सक्सेस शुड नॉट डिटर द एंटरप्रेन्योर। रोड ब्लॉक्स आर बाउंड टू कम, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपको डिटर ना करें, आपको आपकी मंजिल से भटकाएं नहीं। For example, mixers when introduced did not have many customers, but today we find it to be an essential part of the kitchen accessories. मतलब जब मिक्सर्स पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी, ना बन पा रही थी। पर आज आप देखिए, कोई विरला ऐसा घर होगा जहां पर आपको मिक्सर्स एंड ग्राइंडर्स नहीं मिलते। हाथी छाप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। When Mahima Mehra brought out her product Hathi Chap, she had experimented on various other materials before using elephant dung to manufacture handmade paper. तो जो हाथी छाप एक कंपनी है जो which uses elephant's poo, elephant's dung, उनके गोबर को यूज किया जाता है in order to make handmade papers. और आज की डेट में it is the most in demand company which makes handmade papers. तो जब स्टार्ट किया था उतनी डिमांड नहीं थी, बट जो वर्ड है ना परसिवियरेंस, इसको आपने भूलना नहीं। पहले तो इस वर्ड का ना एनालिसिस करिए 2-3 दिन बैठ के, थोड़ा सा लिटरेचर पढ़िए इसमें कि परसिवियरेंस भला क्या है, इसका यूसेज क्या है, होता क्या है परसिवियर करना, नॉट गिविंग अप के एग्जाम्पल्स क्या है, किस किस केस में आप गिव अप नहीं कर सकते। आई नो सर्टेन फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो बिजनेस पहले करके बहुत फेल हो चुके हैं, पर हाँ, आपकी अगर अप्रोच केयरलेस है, अब आप कैजुअल अप्रोच से काम करते हैं, फिर तो भला होना मुश्किल ही है आपका। पर यस, इफ योर अप्रोच इज वेरी सिंसियर, आप हर रोज मेहनत कर रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं, उसे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू देयर। आर यू गेटिंग इट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, 8 क्वालिटी परफॉर्मेंस। Since entrepreneurs value outstanding performance, one of the behavioral skills necessary is the sensitivity to the concern for the standards and quality of work. So, bachcho, if you are not busy generating quality, you are busy generating quantity, and nobody likes quantity. People loves quality. One develops the skill of comparing the quality of the product services with certain standards, which he or she himself evolve or set or are set by the others. तो कुछ आपको ब्लूप्रिंट्स सेटअप करने पड़ेंगे, जिनको बेस बनाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने का। और उसी स्टैंडर्ड्स को अगर आप मेंटेन करेंगे तो बिलीव मी ऑन दिस, शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको ऐसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़े। बट वंस यू हैव बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ सच क्वालिटी, फिर वो क्वालिटी आपके लिए आपको मार्केट वैल्यू और रिपीट ऑर्डर्स, रिपीट सेल्स और फिर मैक्सिमम वेल्थ प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, द ब्रेन बिहाइंड एप्पल कंप्यूटर्स and iPod, is known to value quality
in all the products introduced by the company. मैंने क्या बात करूं स्टीव जॉब्स की, whenever I hear about this person, जो आज बच्चों एप्पल कंप्यूटर्स की ग्रोथ है, आप इस पर हैरान होंगे सुन के कि एप्पल कंप्यूटर्स इज ग्रोइंग सो रैपिडली even in the absence of Steve is no more now, in the absence of Steve, that this company is creating records. आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा अभी आपको, the name of the company is Apple Computers. बड़े ध्यान से आपने इस बात को सुनना है मेरी, एप्पल कंप्यूटर्स, ये कंपनी का पूरा नाम है। अब आप किसी से पूछ लीजिए कि आपको यू नो अमंग्स द बेस्ट फोन्स, आई वोंट से ओनली द बेस्ट फोन्स, अमंग्स द बेस्ट फोन्स, आपको सबसे ज्यादा पसंद या सबसे ज्यादा इन डिमांड फोन कौन सा लगता है, तो आप मुझे कहेंगे आईफोन। अब आप बड़ी बड़ी ध्यान से बात सुनिएगा, एप्पल मेक्स वर्ल्ड्स बेस्ट मोबाइल फोन्स एंड एप्पल इज नॉट अ मोबाइल कंपनी, इट्स अ कंप्यूटर कंपनी। तो ये है क्वालिटी। आप मुझे कोई काम दे दीजिए, with my sincerity, with my involvement, with my approach, with my innovation, with my creativity, with my solution orientedness, I'm going to create a wonderful product for you. And that's what was the belief of Steve Jobs. And still, after a decade, when he has passed away, still it is admired by the people, that one skill of Steve Jobs, quality over quantity, always. Information seeking, ninth, eighth skill है उनकी, information seeking. Information plays a, I think ninth, yeah, ninth. Information plays a very crucial role at every stage of the enterprise building and management. Information means new knowledge, and you are not, you know, uh, based on, or you are not only using obsolete knowledge, but you are seeking new knowledge now. तो उसके लिए भी बहुत you require efforts. Change is a very difficult thing to accept. The quality and extent of information collected and the ways these have been used to make various decisions. Information collection is one thing, and using it to make various decisions is another thing. By and large, decide the success and failure of an entrepreneurial venture. आप मेरी बात याद रखिएगा बच्चों, जो कंपनीज, अब मैं मोनोपोली की बात तो नहीं करता हूँ कि आपका एक प्रोडक्ट उसकी मोनोपोली बनी हुई है तो यू आर सेटिस्फाइड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेल, वो एक अलग बात है। पर अगर आपने अपनी कंपनी की ग्रोथ आपको चाहिए और आपको दिखाना है लोगों को दैट वी आर ग्रोइंग, तो आपको इंफॉर्मेशन सीकिंग इज अ मस्ट। न्यू इंफॉर्मेशन को पहले तो सर्च इट, यूज इट, और फिर उसको अपने काम पे अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। They can get this information by personally conducting research. Primary researches are there, secondary researches are there. They can hire certain institutions, those who are well versed with the concept of research. वो भी कर सकते हैं आपके लिए. Using feedback from previous related experiences, etc. So information seeking and its application is extremely important. Systematic planning. Failing to plan is planning to fail. आपको सिस्टम के हिसाब से सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। What to do and what not to do. प्लानिंग का मतलब क्या है? What to do and what not to do. क्या करना है और क्या नहीं करना है, प्लानिंग का पार्ट। Every entrepreneur has limited resources in terms of time, finance and manpower. सबको पता है, सारी दुनिया में ऐसा है। ये कोई मतलब किसी एक छोटी कंपनी के साथ नहीं है। TFM, time, finance and manpower. They invest their life savings and total energy in creating entrepreneurial ventures and cannot afford to lose or waste this. लोग अपना समय लगा देते हैं, अपना फाइनेंस लगा देते हैं, और जितनी मैन पावर होती है सब लगा देते हैं। सो नाउ दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। सोच भी नहीं सकते उसको लूज करने के बारे में। और शायद यही बच्चों जो पावर है ना, जो उनकी फोर्स है, वो उन्हें जीतने पर मजबूर कर देती है। वो सोच भी नहीं सकते इस बारे। Before putting the whole enterprise into operation, he is required to develop a detailed blueprint
पूरी ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद ही इज गोइंग टू स्टार्ट द कंपनी। नाउ दैट इज द वाइज एंटरप्रेन्योर। वो वाइज एंटरप्रेन्योर भाई, जिसको ये पता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा लाना कितना मुश्किल है, फिर उसे यूज करना कितना, यू नो सिस्टमैटिक यूज करना तो आसान है, पर सिस्टमैटिक यूज करना, कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे बचाना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कहाँ पे लगाना और कहाँ पे बचाना। अगर आपको यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाना है तो आप कहेंगे आई प्रेफर यूजिंग अ ट्रेन, तो यहाँ पे आप वहां सेफली पहुंच भी जाएंगे और यू हैव सेव द मनी एज वेल। पर अगर आपको यहाँ 100 किलोमीटर दूर जाना है, यू ऑब्वियसली यूज योर कार, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है। तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए प्लानिंग करने का, दैट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल। परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर, इसे बच्चों कहते हैं, जो इसको पूरे पॉइंट को हम कहेंगे द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। द आर्ट ऑफ कन्विंस करना लोगों को। अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते ना, सॉरी टू से, यू शुड लर्न दिस स्किल बिफोर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। हमेशा अपनी ईगो को ऊपर रख के आप ये काम ना करें प्लीज। आप कई दफा अपनी ईगो को नीचे रखें और लोगों को परसुएड करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का है और आप उसे बेच रहे हैं 125 रुपए का। अब कस्टमर कहते हैं जी महंगा प्रोडक्ट है, आप कहिए चलिए 120 का। अगर वो 115 तक भी आता है तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15 रुपीज। ये है परसुएडिंग, ये है कन्विंसिंग। हाँ, आप उसे 100 या 110 का या 105 का मत बेचिए, वहां तक भी आप जा सकते हैं। पर आप ये कहें जी 125 का नहीं बिकेगा तो मैं नहीं बेचूंगा, तो दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग टू डू, बट यस वो कई बार ना बहुत चैलेंजेस ले आते हैं इंसान की जिंदगी। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट कंप्राइजिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो उन्हें सिर्फ लोगों से मिलना है और कंपनीज को इन्फ्लुएंस करना। फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, ऑब्टेनिंग इनपुट्स, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो मोबिलाइजिंग रिसोर्स का मतलब है रिसोर्सेज, टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इनपुट्स को ऑब्टेन करना, अपनी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना, और सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए skills of an entrepreneur are very important. They must practice highlighting the strong points of their products and services in the market, explaining the technological competencies of their enterprise to produce quality goods and services. तो बच्चों, ये परसुएड करने के लिए लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट, दे मस्ट प्रैक्टिस हाईलाइटिंग। क्या हाईलाइट किस चीज को करें? द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स किसके? ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज बनाते हैं तो सर्विसेज के, इन द मार्केट एक्सप्लेनिंग द टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज ऑफ देयर एंटरप्राइज टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप फैबिंग करेंगे। मैंने बता दिया और आप सीख गए, ऐसा नहीं। इसे समझने के बाद ना इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आप प्रोडक्ट के फीचर्स बताएं पहले, फिर आप उसके एडवांटेजेस बताएं, फिर आप उसके बेनिफिट्स बताएं। मैं आपको एश्योर करता हूं, जो भी एंटरप्रेन्योर इस स्किल को यूज करेगा, इस स्किल को यूज करेगा, वो प्रोडक्ट बिना बेचे नहीं ओनर को जाने देंगे। फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट। इसलिए मैं कई बार बच्चों को कहता हूं, जो 11th 12th ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, बच्चों आपको थोड़ा सा ना स्किलफुल बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा विटी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लियर एंड क्लेवर बनना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट। ये स्किल है, एक कला है। इसमें ना आपको आवाज ऊंची करनी है, ना ज्यादा बोलना है, बस आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, सी दिस मोबाइल फोन, इट इज वेरी लाइट इन, ये फीचर हो गया। इसके एडवांटेज क्या है? वेन यू कीप इट इन द पॉकेट, इट वोंट बर्डन योर पॉकेट। ओके। बेनिफिट्स क्या है? इट विल लाइटर टू होल्ड, आपको हैवी नहीं लगेगा, आपका हैंड
टायर्ड फील नहीं करेगा, इजिली आप इसे विद द हेल्प ऑफ अ थंब और अ फिंगर आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप ऐसे 5 फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स बता दीजिए कस्टमर को, मैं श्योर करता हूँ कि वो उस प्रोडक्ट के बाद दूसरे प्रोडक्ट को देखेगा ही नहीं। पर आप दिखाएंगे जी अच्छा प्रोडक्ट है, ले लो, इससे ये एक आधा बेनिफिट होगा, तो कस्टमर इज नॉट रेडी टू डू। बच्चों मैंने बहुत साल रिटेल पढ़ाया है और मुझे ये पता है कि मैं बड़े बड़े स्टोर्स में जाता हूँ, बड़े बड़े स्टोर्स में जाता हूँ और मैं स्टोर मैनेजर से पूछता हूँ कि आपकी सेल्स कितनी आ रही है। वो कहते हैं सर सेल्स कम है, क्योंकि मुझे ना जो वहां पर फैबिंग देख के ना पता चल जाता है। आप कभी भी रिटेल स्टोर में जाइए, छोटे छोटे स्टोर्स खुले हैं, सुपरमार्केट जिसे हम कहते हैं, आप कभी वहां जाएंगे ना तो कभी भी कोई आपको ना एसोसिएट या कोई आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव आएगा नहीं हेल्प करने के लिए। और ये सबसे ज्यादा गलत तरीका है अपनी स्टोर को प्रेजेंट करने का। आप स्टोर पे जाते हैं, आपका गार्ड वेलकम करता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, हियर इज अ कार्ड फॉर यू। आपके हाथ में जैसे वो ट्रॉली देता है ना, आपको फील आ जाती है आई हैव बीन वेलकम, और ये मानता है कि मैं ज्यादा माल यहां से खरीद के जाऊं, चाहे आप ना खरीदो। उसने आपको ये एहसास करा दिया। आप अंदर गए, आपके पास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव आ गया, सर हाउ कैन आई हेल्प यू, बस। जो टिकट साइज मैं अंदाजा लेके चल रहा हूँ, जो टिकट साइज आपका 100 रुपीज का था, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड लेने गए 100 रुपीज का, वो लगभग लगभग इस एक्टिविटी से 300 रुपीज का हो जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स। क्या? परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना और फैबिंग करना। चलिए, एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसीज। अब सब कुछ कर लिया आपने, प्लानिंग कर ली, ब्लूप्रिंट बना लिया, पैसे इकट्ठा कर लिया, अब लॉन्च करना, आपको पता है वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट बट डज नॉट ऑल पीपल रिस्पॉन्ड टू देम। अपॉर्चुनिटीज तो सबके पास है, रिस्पॉन्ड ही कोई नहीं कर पाता ना, तभी तो अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती है। एंड अपॉर्चुनिटीज आर वेरी शाय, दिल कम वंस टू यू, इफ यू वोंट पे हीट ऑन देम दिल गो अवे। Okay. Large groups in society can perceive only the apparent and traditional openings of earning. और बहुत सारे ग्रुप्स, बड़े बड़े मतलब आप मेजर ग्रुप्स देखिए जो बड़े बड़े, मतलब मैं बड़ा इन द सेंस कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है वो ट्रेडिशनल ओपनिंग्स और अर्निंग्स को देखते हैं। भाई एक ट्रेडिशनल तरीका है, जॉब पे चले जाओ, एक छोटी दुकान खोलो, ये काम करने का, तो छोटे छोटे तरीके लोगों को पता है। पर अगर आप अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं तो वो कहाँ है, वो डिफिकल्टीज। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन ने से पूछा गया कि भाई आप तो यू हैव बीन टू स्कूल फॉर 3 मंथ्स ओनली, बट हाउ यू हैव इन्वेंटेड these many machines? तो वो कहते हैं आई सी यू नो अपॉर्चुनिटीज इन डिफिकल्टीज एज डिसगाइज्ड। अपॉर्चुनिटीज अब डिफिकल्टीज में है। पर जैसे ही एक नॉर्मल एवरेज इंसान को डिफिकल्टी आती है, कम ऑन, इट्स द बेस्ट ऑप्शन टू गिव अप, क्योंकि उसके पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यही है कि डिफिकल्टी है तो आप झुक जाओ, बैठ जाओ, यू शुड नॉट बी डूइंग योर नेक्स्ट मूव। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एन एंटरप्रेन्योर, इट्स अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। वो डिफरेंट एक्यूमेन है, वो कहता है नहीं भैया ये डिफिकल्टी है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज है। सर्च, आई टेक यू बैक ऑन दिस वर्ड जो मैंने यहाँ यूज किया था, सॉल्यूशन सर्चिंग। ये क्यों डिफिकल्टी आ गई, क्या कारण, क्या बना? मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पर हार जाते हो तो आप कहते हो यार मैं तो मेहनत भी नहीं, मेहनत भी कर रहा हूँ और आई एम गोइंग टू गिव अप, चलो चलो अब चलते हैं वापस, अब फिर से नया काम शुरू करते हैं। नो, दिस इज नॉट गुड। Second point, similarly, resources are also available to all members of the society, but very few make effort to ensure best use of these resources. Effort क्या है? मेहनत। दिल लगा के मेहनत करनी है, सारा दिन रात मेहनत करूंगा, 15 घंटे मेहनत करूंगा अपने काम के ऊपर, देखता हूँ कामयाब कैसे नहीं होता। सोच लिया ये बिजनेस खोल लूंगा, अब जी चलाना तो मुझे आता नहीं, एफर्ट्स तो मैं लगा ही नहीं सकता, तो बिजनेस कैसे चलेगा? ये जो एंटिटी है, ये तो आपका, आपकी मिरर इमेज है। बिजनेस तो जो आप है वही आपका बिजनेस। आप देखते हो बड़े बड़े शोरूम्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। A big institution, a big organization is the lengthened shadow of its leader. एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन उसके लीडर की लेंथन्ड शेडो है, उसकी शेडो है वो। तो आपको एफर्ट्स तो डालनी पड़ेगी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात तो ये करना ही पड़ेगा। आपको 8 8 10 10 घंटे की सीटिंग तो लगानी पड़ेगी। अगर आपको बाद में रिजल्ट चाहिए अपने, ना तो आप सीटिंग लगाओ ना आप बैठो, आप सिर्फ बातें करते रहो, तो ऐसे एंटरप्राइजेस लॉन्च नहीं होती। कभी भी आप किसी बड़ी कंपनी का बैकग्राउंड देख लीजिएगा, हमेशा
वो 1,000-1,500 रुपए से शुरू हुई होगी कंपनी। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में बच्चों पढ़ता हूँ, इतने इतने बड़े कंप्यूटर हाउसेज हैं कंट्री में, कैसे कैसे स्टार्ट हुए, 600-600 रुपए से, 700-700 रुपए से, और आज उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में टर्नओवर। एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। Similarly, resources are also available to all the members of the society, but very few make efforts to ensure best use of the resources. एफर्ट्स कोई डालना नहीं चाहता, बहुत कम लोग हैं जो कर पाते। इसीलिए सोसाइटी में 99% पीपल आर एम्प्लॉइज और 1% आर एम्प्लॉयर्स। अब ये जो 1% एम्प्लॉयर्स है ना, इनके पास ही एफर्ट्स टेकिंग एबिलिटी है। मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, मतलब एक मैंने इनके बारे में पढ़ा था, नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, पर मैंने उनके बारे में पढ़ा था। वो कहते थे कि मेरी जिंदगी में कामयाबी का मूल मंत्र है, सुबह 4 बजे नहाता हूं मैं, भगवान का नाम लेता हूँ, जूते पैर में पहन लेता हूँ, और रात को 10:30 बजे मेरे जूते उतरते हैं। और एक क्वालिटी से वो आदमी कितना बड़ा इंसान बन गया। अब एक वीक आदमी की निशानी क्या है? सुबह 8 बजे उठेगा, 10 बजे तक वो नहाएगा धोएगा, 12 बजे अपने काम पे जाएगा, और 6 बजे वापस आ जाएगा, एंड ही वॉन्ट्स अटमोस्ट ऑफ रेस्ट। बिजनेस में ऐसा नहीं चलता। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं। Third, entrepreneurs should identify and avail the facilities and resources needed to launch their enterprise. So they should identify, पहले पहचानो भाई क्या क्या रिक्वायर्ड है मेरे काम के लिए। सब कुछ रिक्वायर्ड नहीं हो सकता आपके काम के लिए, आपका काम दूसरा है। अगर आप दूसरों को कॉपी कर रहे हो तो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। अवेल द फैसिलिटीज, उन फैसिलिटीज को अवेल अवेल करिए, अपने लिए अरेंज करिए, एंड रिसोर्सेज नीडेड टू लॉन्च द एंटरप्राइज। और फिर एंटरप्राइज को लॉन्च कर दीजिए। एट द मोस्ट क्या होगा, जो पैसा टाइम आपने लगाया है वो आप लूज कर देंगे। पर अगर आपने सब सोच परख के किया है तो आप 10-20% ही लूज करेंगे, 80% आप फिर भी रिकवर कर देंगे। लास्ट पॉइंट, एंटरप्राइज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी। जब एंटरप्राइज आपका स्टार्ट हो गया, उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है, लोगों को मैनेज करना बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन को मैनेज करना बहुत जरूरी है, सर्विसेज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। आप ब्रेड खाते हैं सुबह सुबह, कई घरों में रोज बनती है। आपको पता है कि अगर 2 दिन ये ब्रेड की कंपनीज बंद हो जाएं प्रोडक्शन करना, तो हमें मिलेगी नहीं फिर। या मिल्क बनना बंद हो जाए तो हम फिर भागेंगे भी डेयरी में मिल्क लेने के लिए। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज बहुत जरूरी है। उसी उसी के लिए कहा जाता है ना, आप पढ़िए ताकि आप बड़ी बड़ी चीजों को इजिली मैनेज कर सके। एक व्यक्ति से गाड़ी सही से नहीं चलाई जाती, छोटे छोटे बच्चे आर फ्लाइंग द प्लेन्स। अभी मैं एक फ्लाइट से वापस आ रहा था, बहुत छोटी सी यंग का, मतलब लड़का लड़की थे, बहुत ज्यादा एज में, छोटे तो बहुत नहीं थे, बट देवर इन देयर 30s, 32-35। गर्ल शायद से भी छोटी होगी, एंड दे बोथ वर पायलट्स एंड दे फ्लाइंग द प्लेन। मुझे इतना अच्छा एनकरेजमेंट मिली कि इतना व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, इतनी बड़ी मशीन वो चला रहे हैं, हाउ दे आर डूइंग, दे नो द मैनेजमेंट, they have the management competencies. The enterprise may be small or big, and enterprise छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बट इट डिमांड्स मैनेजमेंट एबिलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ इट्स ओनर और मैनेजर। मैं कहता हूं कि आपकी कंपनी छोटी हो बड़ी हो, अगर आपको मैनेज करना नहीं आता ना, तो आप एक छोटी कंपनी का सत्यानाश कर देंगे और एक बड़ी कंपनी को आप आगे लेके जा सकते हैं। और मैं वैसा वर्षा भी कहता हूँ कि बड़ी कंपनी का आप सत्यानाश कर देंगे, छोटी कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। आपको अगर अपनी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज देखने में, रूम को देख लीजिए। आपने उसे कितना मैनेज किया हुआ। जो आपके रूम की मैनेजमेंट है वही आपके काम की मैनेजमेंट है, और जो आपके काम की मैनेजमेंट है वही आपकी ग्रोथ की मैनेजमेंट है। Second point, various management functions such as production, marketing, finance, etc. are crucial functions of an entrepreneur. Production बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, रॉ मटेरियल लाना है, प्रोडक्शन करनी है, टाइमली करनी है, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी, मार्केट तक लेके जाना है, फिर फाइनेंस अरेंज करना है, are crucial functions to an entrepreneur. These influence the results directly. जब आप इन चीजों को मैनेज करते हो ना, तो ये चीजें आपके रिजल्ट्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। सफाई एक आदत है, क्लीनलीनेस इज अ हैबिट।
and which can be nurtured, nursed, and directed every day, and therefore are necessary detriments for the sustenance of an enterprise. और तभी ये enterprise sustain कर जाती है even in tough time. अभी आपने टफ टाइम देखा है जो पेंडेमिक का आया, कई ऑर्गेनाइजेशंस बैठ गई, जरा एनालिसिस कीजिएगा पीछे जाके, व्हाट वाज द रीजन? मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग अनसर्टेन. सो बच्चों, जब भी हम एक काबिल आदमी की बात करते हैं ना, तो ये सब कॉम्पिटेंसी उसके अंदर होती है. जब हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं ना जो पढ़ लिख के भी आगे नहीं बढ़ पाया, तो he just misses the mark of all these competencies. And the same happens when you talk about entrepreneurs. ये कितना जबरदस्त सब्जेक्ट है, मुझे सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए इतना अच्छा लगता है बच्चों को, that it is the summing up of all the subjects. This is a culmination of all the subjects that we study. It's a beautiful subject. So bachcho, with these points, 13 points, we come to the end of today's class, where we have taken all these beautiful points and I have explained them to you. Entrepreneurial competencies, initiatives पर बात करी है, creativity and innovation पर बात करी है, risk taking, risk management पर बात करी है, problem solving, leadership, persistence, quality performance, information seeking, systematic planning, persuasion and influencing others, enterprise launch competencies and enterprise management competencies. And इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी चीज को बहुत सारे स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, वो है रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन. इसके अंदर मैंने आपको वोकेबलरी दिया आज की क्लास में से 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स. मैं आगे इन वर्ड्स को बढ़ा भी दूंगा, पर अब हमने क्या किया है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको वर्ड्स देते हैं. फिर आपको मैंने शॉर्ट 10 क्वेश्चंस दिए हैं अलोंग विद आंसर्स. फिर सिनॉप्सिस है आज की क्लास का. फिर आपको मैंने 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं along with answers. और बच्चों, ये मेरे मेरे एक और चैनल है मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन का. अगर आप यू वांट टू गेट एनकरेज, यू वांट टू सी द राइट डायरेक्शन ऑफ द life, if you want to change your life for the better, you can go to that channel as well. So I'm having two channels. One is ABC Lucky Pushrat and another one is Mavericks India Solution. आप दोनों channels को subscribe कर सकते हैं and you can get extremely benefit. So until we meet next time with another class, bye bye for now. Take care. God bless you all. And it's a presentation by Team Mavericks India Solution. And with Mavericks India, you always remember, you'll always gain. So bye bye for now. God bless you all. Take care.